कोई पढ़े? मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण हैं। It is like this inheritance. या नीच बात। Inheritance means नीच बात मतलब treasure or wealth. परमेश्वर का खजाना या संपत्ति। Amen. When you are taking word of God as your treasure, जब आप परमेश्वर के वचन को आपका खजाना कर लेते हो, that is the time वो समय है all worldly treasure will come to you. सारा संसार का संपत्ति आपके पास आ जाएगा, खजाना आपके पास आ जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Don't forget, भूलना नहीं, word of God परमेश्वर का is वचन your inheritance. वो आपका हृदय का निज भाग है। That is why Job is telling, इसलिए अय्यूब ऐसा कहता है, Job 23:12, और अय्यूब का 23:12, I will hidden this treasure in my heart. मैं इस खजाना को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। I am taking this word as my necessary food. मैं इस वचन को लेता हूँ मेरे जरूरत का कारण। Jeremiah 15:16 says, और इर्मिया का 15:16 कहता है, whatever I receive the word, जो भी वचन मैं प्राप्त करता हूँ, they are my necessary food. वो मेरे जरूरत का भोजन है। What is the meaning of necessary food? जरूरत का भोजन का अर्थ क्या है? Breakfast, lunch, dinner, everything. नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। Amen. आमेन। When you are taking the word as your necessary food, जब आप परमेश्वर का वचन को आपका जरूरत का भोजन बोल के लेते हो, your inner man will grow like Jesus. आपका अंदरूनी मनुष्य यीशु के समान बनते जाता है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. How you are giving the prominence to the word of God, जितना ज्यादा आप महत्व प्रभु यीशु के वचन the को देते word हो, of God will honor. परमेश्वर का वचन आपको आदर The करेगा word of God will take all your shame upon your life. और परमेश्वर का वचन आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। Where you are put head down, जहाँ पर तुम्हें शर्मिंदगी किया that is था, the time there God wants to lift you up. वहाँ पर ही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. That is why don't forget, word of God is your wealth, your treasure. इसलिए भूलना नहीं कि परमेश्वर का वचन आपका संपत्ति है, निज संपत्ति है। Amen. आमेन। That is why the Bible says इसलिए बाइबल कहती है in the New Testament, नए करार में 2 Corinthians chapter 4 verse 7, दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय और 7वां वचन, God has put this treasure in the mud pot. परमेश्वर ने इस खजाना को मिट्टी के बर्तन में डाला है। We are the mud pot. हम वो मिट्टी के बर्तन हैं This body is made from the mud. और इस शरीर मिट्टी से बनाया गया है, But God has put the treasure. लेकिन परमेश्वर ने इसमें खजाना डाला। That treasure is Jesus. वो खजाना यीशु That है treasure is the word. और वो खजाना वचन है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Proverbs chapter 15 verse 6 says, और नीति वचन के 15 और 16 15:6. और 15 का 6वां वचन कहता The है, Bible says, बाइबल कहती in है, the house of righteousness, धार्मिकता के घर में a great treasure dwells in एक the house. बहुत बड़ा खजाना निवास करता है। Amen. आमेन। You are the righteous because through Christ, in Christ. और आप धर्मी हैं क्योंकि मसीह के द्वारा मसीह के अंदर। You are the house of righteous. आप मसीह के धर्मी के घर In your घर house, को आपके घर में God has put a treasure. परमेश्वर ने खजाना को डाला है। Amen. आमेन। Treasure means खजाना मतलब it will not empty. वो आपको खाली नहीं करेगा। Amen. Hallelujah. One more thing. और एक बात, The famine is coming. अकाल आने वाला है। Not famine, any famine. किसी और बात का अकाल नहीं The होगा। famine of the word of God has. परमेश्वर का वचन का अकाल बहुत जल्द आने वाला है। Before famine comes, अकाल आने से पहले all the word of God परमेश्वर का सारा वचन has को to go inside and live as a treasure.
निवास करना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आप आनंदित है? This is the year ये वर्ष है, your grain will be multiplied. आपका अनाज दुगना हो जाएगा। What is your part? आपका हिस्सा क्या है? Now the grain आप अनाज से and प्रेम receive करो the grain. और अनाज को Spend स्वीकार time with the करो grain. और अनाज के साथ समय बिताओ। Fill your heart with the grain of the word of God. अपना हृदय को परमेश्वर के वचन से भर देना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. When you're filling the word, जब आप वचन से भर रहे हो, what you're filling? आप क्या भर रहे हो? You're filling with Jesus. आप यीशु के संग भर रहे हो। Amen. आमेन। When the word of God fills you, जब परमेश्वर का वचन आपको भरता है, joy fills you. आनंद आपको भरता है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Jesus fills you. यीशु आपको भरता है। You look like Jesus. आप यीशु के समान दिखते The हैं। people around you, जो लोग आपके चारों ओर they हैं, see Jesus in you. वो यीशु मसीह को आपके अंदर देखेंगे। The Prime Minister, King and Chief Minister came to Isaac place. और प्रधानमंत्री, अधिकारी और चीफ मिनिस्टर सभी लोग आए Isaac place, Isaac house. ईसा के घर में। Genesis chapter 26:26. और उत्पत्ति के 26वां अध्याय का 26वां वचन What they are telling? क्या कह रहा है? They're jealous about Isaac. ईसा से जलन रख रहे हैं। Now they're telling king. और वो अभी कह रहे हैं राजा। King means government. राजा मतलब सरकार। Listen carefully. ध्यानपूर्वक These सुनना। are the last days. इन आखिरी दिनों में Government has to come to the church. सरकार कलीसिया में आना जरूरी है। Church, we have church will not go to the government. कलीसिया सरकार के पास नहीं जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। But the government said they're telling और सरकार क्या कह रहा है? that the king and prime minister and chief minister is telling राजा, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर लोग क्या कह रहे हैं? Isaac, we are very sorry. ईसा, हम तुझसे क्षमा मांगते Who हैं। is Isaac? ईसा कौन है? Isaac is a traveler of that country. ईसा तो वहाँ से केवल यात्री करने वाला He's not नहीं a था। citizen. वो वहाँ का नागरिक नहीं था। We are also not the citizens of this world. हम इस संसार के नागरिक नहीं We हैं। are the citizens of heaven. हम स्वर्ग के नागरिक We हैं। have come in this world as a traveler. हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं। Hallelujah. हालेलुया। The government will come to you. और सरकार तुम्हारे पास आएगा। What they're telling? वो क्या कहते हैं? Isaac, ईसा, we know. हम जानते हैं, We are sure about you. हमें पक्का मालूम है God, Elohim is with you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे संग है। Hallelujah. That is why make a covenant with us. इसलिए हमारे साथ तुम एक वाचा बांधो। Who is pleading? कौन विनती कर रहा है? Not normal, common people. साधारण नागरिक नहीं बोल रहा है ये The बात। government सरकार, authorities. अधिकारी लोग। Why? क्यों? They are pleading because God is in you. वो विनती कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। God is with you. परमेश्वर आपके संग है। आमेन। Isaac, ईसा, your favor upon you, God's favor is there. परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है। They came to know वो जान गए without Isaac, ईसा के बिना we cannot forward. हम आगे नहीं जा सकते। Hallelujah. हालेलुया। That is the position of the church. वो मसीह के कलीसिया का स्तर होना The चाहिए। church has lost that लेकिन position. ये स्तर को हम कलीसिया खो बैठे हैं। But you don't lose that position. आप उस स्तर को खो नहीं देना। Okay? You cannot lose that position. आप उस स्तर को खो नहीं दे सकते। Amen. आमेन। The excellent spirit जो उत्तम आत्मा है is in you. वो आपके अंदर है। Not simple things that spirit is doing. और साधारण बातें वो उत्तम आत्मा नहीं करती है। This excellent spirit will connect to the minority and majority. और ये उत्तम आत्मा है जो छोटे झुंड को बड़े झुंड के साथ जोड़ देगा। Majority will come to the minority. बड़े झुंड छोटे झुंड के पास आ जाएगा। You can't understand that. आप इस बात को नहीं समझ सकते। But when the Lord will reveal this truth, जब परमेश्वर इस सच्चाई को प्रकट करेगा that's the time you understand. उस समय आप इस बात को समझोगे। Amen. आमीन। The few suggestion, few instruction
कुछ सलाह मैं देना चाहता हूँ। You are already an excellent spirit. आपके अंदर उत्तम आत्मा है, You have to grow in the excellent spirit. लेकिन उस उत्तम आत्मा में आपको बढ़ना जरूरी है। How to be, walk and live with excellent spirit. किस तरह से आप उस उत्तम आत्मा के साथ जियोगे और उसमें बढ़ते जाओगे, उसके साथ चलोगे। You go to home and study about Joseph. आप घर में जाके यूसुफ के बारे में पढ़ना। I mean, you go and home and study about Daniel. आप दानियल के बारे में जाकर घर में जाने के बाद पढ़ो। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना। The Daniel दानियल जो has a spirit of excellence. उसके ऊपर उत्तम आत्मा थी। What is his life? उसका जीवन क्या था? He is a prisoner. वो एक बंदी बनाकर ले As गया। a prisoner, he went to the Babylon. वो बंदी बनाकर उसको बाबिलोन शहर में लेकर गया। Bible says बाइबल कहती है he was selected from Babylon's authorities. और बाबिलोन के अधिकारियों में से उसको चुना गया। Selected as a soldier. उसको सैनिक बोलकर चुना। There, the first chapter, the Bible says. पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना। The Bible says that बाइबल ऐसा कहती है, they are giving rich food, kingly food to the soldier. और वो सैनिकों को राजा का राजमहल का भोजन दे रहा है। Because क्योंकि king purpose make them to soldier warrior. राजा के लिए वो एक सैनिक बने मजबूत। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है, Daniel 1:9. दानियल के पहले अध्याय का 9वां वचन, Daniel decided not to defile his heart. दानियल ने निर्णय लिया अपने हृदय को वो गंदा नहीं करेगा। So listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना। When you are living in excellent spirit, जब आप उत्तम आत्मा में जीते हो walking in excellent spirit, और उत्तम आत्मा के साथ चलते हो, you have to run for holiness. आपको पवित्रता के लिए दौड़ना है। When the desires comes, जब ऐसे इच्छा आती है, when thoughts comes, ऐसे विचार आता है, you just rebuke those thoughts. उन विचारों को तुम नकारो। See, thinking thoughts will come. देखो सोच तो कैसा भी आएगा। You are not holy like Jesus. आप पवित्र यीशु के जैसा पवित्र नहीं है, Pretend like Jesus. लेकिन हम ऐसे दिखाते कि हम यीशु के जैसे Thoughts will पवित्र। come. विचार आएगा। Either we are married people or alone. हम शादीशुदा हो या अकेले हो, The mind is very corrupt. मन जो है बहुत अशुद्ध है। Thoughts will come. विचार आएंगे। When the bad thoughts will come, जब गंदे विचार आते हैं, Jesus told the parable और यीशु ने इसे दाखलता कहा in the Mount Sermon. और मन When you वैसे मन के बाहर है, are thinking about lust, जब आप वासना के बारे में सोचते हो, you already fall into the sin. आप पाप कर चुके हो। Sin will start from your thinking. और पाप जो है आपके सोच से शुरू होता है। Not falling. गिरना नहीं, हाथ सर देना You नहीं। not fell. अभी तक आपने पाप But किए your हैं, thoughts लेकिन आपका विचार define your heart. आपका हृदय को गंदा कर देता That है। is why Daniel decided इसलिए दानियल ने निर्णय लिया not to defile his heart. वो अपना हृदय को गंदा नहीं करेगा। And he went to the authorities. और वो अधिकार के पास गया, Please don't give Kingsley king food. कृपया करके मुझे राजा का भोजन मत देना। Why? क्यों? That food is worship idol. Through idol that the food will serve. क्योंकि वो भोजन मूर्ति पूजा के सामने आराधना के टाइम में रखकर फिर बाद में आकर लोगों को खाने को दिया गया। This young boy Daniel, ये जवान लड़का दानियल he went to the officer. वो ऑफिसर के पास गया, Sir, सर don't give non-veg. मुझे मांस और मछली नहीं चाहिए, Don't give rich food. मुझे राजघराना का भोजन नहीं चाहिए, Give me vegetarian. मुझे केवल सब्जियों का देना। Officer said, ऑफिसर ने when you कहा are giving vegetarian, ये अगर हम लोग केवल the तुझे सब्जी king दें comes to know you are weak, और राजा को पता चला तू कमजोर है, he will kill me. वो मुझे मार डालेगा। No, 10 days. नहीं, 10 दिन। Listen carefully, 10 days. ध्यानपूर्वक सुना, 10 दिन। After 10 days, 10 दिन के बाद they are taking just vegetarian food. 10 दिन तक वो लोग
केवल शाकाहारी खाए, They are not that the delicious food. वो लोग ने राजा का घराना का अच्छे पौष्टिक आहार नहीं खाए। What happened? क्या हुआ? They are more than tenfold stronger, fairer and fatter. और वो लोग 10 गुना ज्यादा बाकी सैनिक से बलवान, सुंदर भी हो गए और वो लोग मोटे भी हो गए। When you have decided to live holy life, जब आप निर्णय लेते कि आप एक पवित्र जीवन जियोगे, your strength will increase mentally and physically and spiritually. आपका बल बढ़ता जाएगा आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से। Job 79 says, और अय्यूब के किताब 70 वाला 9वां वचन कहता है, clean hand going into stronger and stronger. एक शुद्ध हाथ बलवंत और बलवंत होते जाता है। Where is the strength? बल कहाँ से आता है? Holiness is in the strength is in the holiness. पवित्रता में वो बल है। Hallelujah. हालेलुया। When the Potiphar wives called Joseph, और जब फटीफर के पत्नी ने यूसुफ को बुलाया, he didn't agree. वो मंजूर नहीं हो गए। He said, उसने कहा, how can I sin against my living God? कैसे मैं अपने पवित्र परमेश्वर के विरोध में पाप कर सकूं? He ran from the sin. वो उस पाप से दौड़ कर भागा। Whenever thoughts will come, जब कभी भी विचार आता है, you just reject those thoughts उस विचारों को तुम नकारो and think about the word of God. और परमेश्वर के वचन के बारे में Think सोचो। about the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो। Amen. That is the first thing. वो पहली बात है। The second thing. दूसरी बात, Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. Are you catching something? क्या आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं? Say yes. बोलिए हाँ। Sister Abhiya. Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनना। When Daniel has excellent spirit, जब दानियल के अंदर उत्तम आत्मा है, he is a prayer warrior. वो एक प्रार्थना योद्धा है। He is connected to all the time Jesus. वो हमेशा यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। His friends also prayer warriors. और उसके मित्र भी प्रार्थना योद्धा हैं। Anything happens, कुछ भी हो he जाता will है, call his friends वो अपने मित्रों को बुलाता है और प्रार्थना and करता है। sleep. सोते हैं, In the dream, God will give the dream. सपने, अब परमेश्वर उनको सपने देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then your personal altar. अपने व्यक्तिगत वेदी को तैयार करो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Daniel 6:10 says, दानियल 6:10 कहता है, all Babylon brought on rule. और पूरे बाबिलोन ने एक नियम को लाया। Nobody can pray to their God. कोई भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। Nobody can worship their God. कोई भी अपने परमेश्वर से आराधना The नहीं Lord करेगा। came already. और परमेश्वर What God did, what Daniel did, और दानियल ने काम he किया था। went to the upstairs his house. वो अपने घर में गया, He's not hiding himself. वो अपने आप को छुपा के प्रार्थना नहीं The करता। Bible says, बाइबल कहता है, all the windows doors are open. सारा खिड़की दरवाजा खोल दिया उसने। He kneeled वो down घुटने पे आया। and prayed every day 3 times. हर दिन वो दिन में 3 बार Not only प्रार्थना करता है। praying, केवल प्रार्थना ही नहीं करता है। praying that God, he is worshiping God. और प्रार्थना कर वो परमेश्वर का आराधना किया। Anything happens, अगर कुछ भी होता है, don't away from your prayer life. आपके प्रार्थना जीवन से दूर मत Don't जाना। run, somebody will pray for you. कोई ये मत सोचो कि कोई आके तुम्हारे लिए You प्रार्थना करेगा। connect the source. आप परमेश्वर के साथ Connect जुड़ to जाओ। God. आप परमेश्वर के Then साथ जुड़ जाओ। excellent spirit, gift or excellent spirit will working in your life. जब तभी ही आपके जीवन में ये उत्तम आत्मा कार्य करेगा। When you connect to God, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, any disruption, any unjust has happened in that side, कोई भी बरमाना हो या कोई भी पिछली बातें, कोई भी फसाना हो या कोई भी अन्याय हो गया हो, any hatredness, या कोई भी नफरत करता हो, any jealousy, या कोई भी जलन करता हो, it will not stand before you. वो तुम्हारे
सम्मुख नहीं खड़ा रहेगा। Any lion's den, और कोई भी सिंह का गुफा the cruel animal, और क्रूर जानवर like a friends to Daniel. डैनियल के साथ मित्र बन गया। they are hungry. वो लोग भूखे जैसे है। That is the value of connecting God. परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का वो That उद्देश्य is वो the मूल्य है। value of building relationship with God. वो मूल्य है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। When king comes, जब राजा आता है, when Daniel is in the lion den, जब डैनियल सिंह के गुफा में है, What king is calling? राजा क्या बोलता है? a son of living God. ये जीवित परमेश्वर का पुत्र, Are you God save you? क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाया है? But Daniel is और answering, डैनियल क्या उत्तर दे रहा है? yes, my king. हाँ मेरे राजा, I am faithful to you and I am faithful to God. मैं तेरे साथ भी वफादार रहा, मैं परमेश्वर के साथ भी Listen वफादार रहा। carefully. ध्यानपूर्वक सुनना, Faithful to God is very important. परमेश्वर के साथ वफादार रहना The बहुत same महत्वपूर्ण है। important faithful to people, faithful to your authority, faithful to your family members, faithful to your mother, father, husband, wife. और वैसे ही आप आपके अधिकारियों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके पति पत्नी के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके लोगों के साथ आपको वफादार रहना। Amen. Amen. He didn't oppose king's authority. वो राजा का अधिकार का विरोध नहीं किया, Shut his mouth. उसने अपना मुंह बंद कर दिया। They're taking lines then. और वो सिंह के गुफा में जा रहे हैं, He has already authority. उसके पास अधिकार He है, can go and lead the king. वो राजा को बस जा सकता है, जाके He विनती do कर, that. लेकिन उसे राजा से विनती नहीं किया। He went to the king of kings. वो राजाओं का राजा के पास गया। Amen. आमेन। That is your status. वो आपका दर्जा है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। This will happen. ये होगा, You will walk and live in excellence. आप चलोगे और जियोगे उत्तम आत्मा के साथ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. One more thing. और एक बात, Guard your heart. अपने हृदय को सुरक्षित रखो। Don't allow your heart to break or quench the spirit of hatredness. आपके हृदय को आप टूटने मत दो या नफरत से आपको उसको बुझने मत दो। And Joseph's brother came in front of Joseph. जब यूसुफ के भाई यूसुफ के सम्मुख आए, His BP has to go higher. उसका बीपी बढ़ना चाहिए था। These people need me to death. ये लोग मुझे मार डालने का कोशिश These किया, people have sold off me. ये लोगों ने मुझे बेच दिया। That thought is not coming. वो विचार यूसुफ के अंदर नहीं आया। What is that? वो क्या कह रहा है? Hey, you are not sending to me to Egypt. ए, तू मुझे मिस्र नहीं भेजा, God has sent you before परमेश्वर ने तुम लोग से पहले मुझे मिस्र में ले to गया feed you, to protect you. ताकि आपको मैं भोजन दूं, आपको मैं सुरक्षा दूं। That is the spirit of excellence. वो उत्तम आत्मा का स्वभाव है। Hallelujah. हालेलुया। When the spirit of excellence is there, जब उत्तम आत्मा जब आती है, forgive everybody. आप सारी बातों को भूल जाओगे, Anything in your heart. कुछ भी बातों को आपके हृदय में नहीं You are रखोगे। very clean. आप बहुत शुद्ध हो Only word and Jesus is in your heart. और केवल वचन और यीशु आपके हृदय में है। That happens वो होता है through you only. आपके द्वारा ही In होगा, your family. आपके परिवार In में, your ministry. आपके सेवकाई में। Ephraim el God. एफ्राइम What is the meaning of जन्म हुआ, Ephraim? उसका अर्थ क्या है? Ephraim means I'm not telling about children. मैं बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, I'm talking about spiritual abundance. मैं आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में बोल रहा हूँ। When Ephraim born to Joseph, जब एफ्राइम का जन्म हुआ यूसुफ के Genesis 41:51. उत्पत्ति के 41 अध्याय का 51 वाला वचन 51:52 says, और 51-52 वचन ऐसा कहता है, when the second son born, जब दूसरा बेटा यूसुफ को जन्मा, he said, Joseph, where I am humiliated, और उसने कहा जहाँ पर मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, where I am unjust, जहाँ पर मेरे
jail. जहाँ पर मुझे जेल में जाना है, There only God has prospered me double portion. वहीं पर परमेश्वर में दुगना रीति से उन्नति में Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Spirit is excellent spirit और एक्सेलेंट will उत्तम lead आत्मा you to the abundance. आपको बहुतायत के पास ले जाए, But लेकिन you need Manasseh. आपको मनासे का जरूरत है। Manasseh means मनासे मतलब forgetting everything. सब कुछ भूल जाना, Not word. वचन नहीं, Not वचन को word. नहीं भूलना है, Not word. वचन को नहीं भूलना है, Forgetting all other words. सारे बेकार के शब्दों को Forgetting भूलना है। what they have done. उन्होंने आपके साथ क्या किया उसको भूलना है। Forget, Pastor. कैसा मास्टर मैं भूल जाऊं उसने मेरे साथ क्या किया। Listen carefully. सुनिए ध्यानपूर्वक। Excellent spirit is spirit of love. उत्तम आत्मा प्रेम की आत्मा है। Romans 5:5 says, रोमियो का 5वां अध्याय का 5वां वचन कहता God है, has poured out His love through the Holy Spirit in our heart measurelessly. परमेश्वर ने अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उजाला है बहुतायत से। You can't forgive yourself. आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं। You have a spirit of love. आपके अंदर प्रेम की God आत्मा has है। poured the love, a spirit of love. परमेश्वर ने अपनी प्रेम की आत्मा को आपके अंदर When उजाला you है। depend on the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होते you हो, will get the love of God. आपको परमेश्वर का प्यार You will understand the love of God. आप परमेश्वर के प्यार को समझेंगे। You, sister, you are going into the deep level of the love of God. आप परमेश्वर के प्यार के गहराई That में love वो प्यार will make you forgive everybody. आपको सभी को क्षमा करने को सहायता करता है। Not your love. आपके प्यार नहीं, Hallelujah. मनुष्य का प्यार नहीं, परमेश्वर का प्यार। Amen. It's already came. वो आ चुका है। Only where there's Holy Spirit, जहाँ पर पवित्र आत्मा there है, is measureless love. वहाँ पर परमेश्वर का बहुतायत Love का of प्यार God, है, divine love, दैविक प्रेम है, agape love. अगापे प्रेम It's है, already inside. वो आपके अंदर है। You can understand that. आप इसको समझ सकते हैं Through that love, और उस प्रेम के द्वारा you'll forgive others. आप दूसरों को क्षमा करोगे। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. That is what Jesus said. इसलिए यीशु ने When कहा, you forgive the people's sins, जब लोगों के पापों को तुम I क्षमा will करोगे, forgive them. मैं तुम्हें क्षमा When you करूंगा। are not forgive them, जब उन लोगों को आप क्षमा I नहीं will करते, also not forgive them. मैं भी उन्हें क्षमा नहीं कर पाता। What is this? ये क्या है? God has given authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। When you forgive, जब आप क्षमा करते हो, you are giving authority to God. आप परमेश्वर को अधिकार, When you have unforgiveness, जब आपके अंदर न you क्षमा, are giving authority to rule over to the devil in your life. आप शैतान को अपने जीवन में राज करने का अधिकार देते हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आवाज देते हैं? Now we'll stand together and Brother Vicky will lead us into worship. Go deep in worship. आप भी हम उठ के खड़े होंगे, उन्हें आराधना में आराधना में गहराई में जाइए। ये बहुत महत्व का भाग है। God will impart anointing, gifts of the Holy Spirit and the Holy Spirit upon you. पवित्र आत्मा इस क्षण में आपके ऊपर, परमेश्वर जो है आपको पवित्र आत्मा और उसके वरदान, उसके अभिषेक से भर देगा। I told you don't expect from us. मैंने आपसे पहले बताया, हमसे कुछ अपेक्षा ना करें। We want to pour out everything upon you. हम सब कुछ आप पर उंडेलना चाहते हैं, Because we have received freely. क्योंकि हमने मुफ्त में प्राप्त किया है We परमेश्वर want to से। give freely. हम आपको मुफ्त में देना चाहते हैं। Only one desire in our life. केवल हमारे हृदय में एक ही You चाहना have to चाहिए, arise and shine for Jesus. आप मसीह के लिए उठकर प्रकाशमान होना चाहिए, Run for Jesus Christ. आप मसीह के लिए दौड़ने वाले बनना चाहिए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Speak in tongues. अन्य भाषा में बातें कीजिए। Don't see here and there. आप यहाँ वहाँ ना देखिए। What happened? Who fell? What is the prophecy? क्या हुआ, कि कौन गिरा, कौन उठा, क्या भविष्यवाणी मिला, Not bother about उन anything. सारे बेकार के बातों को मत You just you and Jesus. केवल आप और यीशु, Jesus and you. यीशु
will anoint you. परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। The holy oil, fresh oil, precious oil, ताज़ा तेल, पाक तेल, मूल्यवान तेल, the oil of joy आनंद का तेल will come upon you, वो आपके ऊपर आएगा, will rest upon you. वो आपके ऊपर निवास करेगा। When it rests upon you, जब वो आपके ऊपर निवास करता है, anointing will prepare you. अभिषेक आपको तैयार करेगा, Anointing will train you. अभिषेक आपको तैयार करेगा, Anointing सिखाएगा। will equip you. वो अभिषेक आपको बांधेगा, Anointing will create Jesus in your life. अभिषेक आपके जीवन में यीशु को रचेगा, Not anything. कोई और बात नहीं। Not one more man in your life. और एक व्यक्ति को आपके जीवन में नहीं लाएगा, Jesus is in you. यीशु आप में है। Anointing will make your inner man like Jesus. अभिषेक आपके अंदरूनी मनुष्य को यीशु के समान Anointing बनाएगा। will transform you. अभिषेक आपको पूरा Anointing will परिवर्तन break करेगा। every yoke. अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ेगा, Anointing will break all bondage. अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ेगा। Here the anointing of Jesus is there. यहाँ पर प्रभु यीशु का अभिषेक Anointing है, of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक है, Anointing of the triune God. और त्रैन परमेश्वर का अभिषेक है। Just worship. आराधना कीजिए, Just worship Him. केवल आराधना कीजिए Be alert. और चौकस न रहिए। Eagerness to receive from God. परमेश्वर से मुझे आज कुछ प्राप्त करना है, वो इच्छा है। Desire to receive something. परमेश्वर से मुझे कुछ प्राप्त करना है, वो इच्छा है। Not something, a desire to receive Jesus inside. यीशु को मुझे आज प्राप्त करना है, यीशु Don't में ask रहना है। anointing. वो अभिषेक है, Don't ask anointing. अभिषेक को मत पूछो, Don't ask it to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान को मत पूछो। Ask Him. यीशु Ask के लिए fullness of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा का भरपूरता Ask चाहिए मुझे। fullness of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का भरपूरता चाहिए मुझे। Ask fullness of Jesus. यीशु का भरपूरता चाहिए मुझे। Thank वो you, मांगिए मांगिए, यीशु मुझे आप चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए। Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship, worship, worship.
Spirit. ये पवित्र आत्मा का पाठशाला। God has imparted very valuable things in you, परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत मूल्यवान बातों को डाला है, but result will come in your life very, very soon. बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में परिणाम को देखोगे। Don't think you are not receiving anything. आप ऐसे मत सोचो कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। The more testimony will come after the school, ये स्कूल के बाद ज्यादा गवाही आएगा, because क्योंकि the Holy Spirit has done deep work in your life. पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में गहरे काम किया है। Now onwards you are not casual. अभी से आप एक साधारण नहीं हो। Anointing will make you very serious about. अभिषेक जो है आपको बहुत गंभीर बनाएगा। You are very serious about God. परमेश्वर के लिए आपको बहुत गंभीर Very बनाएगा। serious about gospel. Very serious about ministry. सुसमाचार के लिए बहुत गंभीरता को लेकर आएगा और आपकी सेवाकाई के लिए भी आपके अंदर गंभीरता को But लेके आएगा। you have to work on that. लेकिन आपको उसके लिए कार्य You करना have पड़ेगा। to pay the price. आपको एक दाम चुकाना पड़ेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. Lord, bless this soil, Lord. परमेश्वर हम इस तेल को अभिषेक करते हैं। Lord, transform this oil cup. परमेश्वर इस तेल को संपूर्ण रूप से बदल दीजिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You just worship me, Lord. Thank you, Lord Jesus. Come. Thank you, Lord. Lord, we bless this oil. परमेश्वर हम इस तेल को आशीष करते हैं। Transform this oil as the oil of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का तेल कर इसको बदल देना। Holy oil, पवित्र तेल, precious oil, मूल्यवान तेल, the fresh oil, और एक ताज़ा तेल, the oil of joy. एक आनंद का तेल। Your name is a poured ointment. आपका नाम में एक ऑइंटमेंट डाला गया है। You just poured out your name in this oil. आपका नाम को इस तेल में उडाला गया है। Transform this oil of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का तेल में बदल देना। Lord, प्रभु, this is a substance. ये एक पात्र है। The Bible says, बाइबल कहती है this substance transformed as the blood of Jesus ये Christ. वस्तु को यीशु मसीह के लहू में बदल दिया गया। Give all the glory. हम सारा महिमा आपको देते हैं। We are nothing, Lord. हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। We humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते हैं। You anoint your people. आप आपके लोगों को अभिषेक करते You are the baptizer. हैं। आप उनको अभिषेक करने वाला You are the source of everything. आप सारी बातों का श्रोता हो। We will give all the glory to you. हम आपको सारा महिमा देंगे। Lord, we pray. हम प्रार्थना करना We देंगे। just pray that song. हम केवल इतना ही प्रार्थना करते हैं। Everything you will do. बाकी सब कुछ आप करने वाले हैं। You will transform them, Lord. आप उनको बदल देना। This oil went into their head and inside inner man and all over the body. और ये तेल उनके सर से लेके अंदरूनी मनुष्य और उनके पूरे शरीर में बैठा हुआ था। When you anointed Adam, जब आपने आरोन को अभिषेक the किया, oil, the anointing has come upon his head and his shoulder, his sprinkle also. और उनके वो अभिषेक तेल उनके सर से लेके दाढ़ी लेके कंधों तक और उंगलियों तक भी पहुंच गया। That will happen in this place. इस जगह में इस समय ये बात When Samuel went and anointed David, जब सामल जाकर दाऊद को अभिषेक किया, the Spirit of the Lord rested upon David. परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर विराजमान हुआ That has to be happening. और वो होना है। Give God the glory. हम आपको महिमा देते हैं In Jesus. यीशु के महानाम में। Amen. आमेन। Oh, Rabba Shakara. We will just all stand together here. Not only I pray, मैं केवल अकेला नहीं प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम सभी लोग आपको प्रार्थना I believe corporative anointing. हम कॉर्पोरेट अभिषेक पे विश्वास करते हैं। समूह Anointing का will अभिषेक not come alone. अकेले पे नहीं आता है, सबका The मिलकर corporative anointing. समूह का अभिषेक जो है That is the early church वो anointing. पहले कलीसिया का अभिषेक है। Today, आज you are receiving आप प्राप्त कर रहे हैं corporative anointing. वो पूरे सभी का कॉर्पोरेट
सेपरेट Not, एक मन not का only अभिषेक, one person anointing. केवल एक व्यक्ति का अभिषेक नहीं, Today we are receiving the manifold anointing upon. नाना प्रकार का अभिषेक को आप प्राप्त कर रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Speak in tongues. अन्य भाषा में बातें कीजिए। You sit there only. आप वहीं पर बैठिए, Sit there only. आप वहीं पर बैठ जाइए। Be as a worship mode आप आराधना करते बैठिए and singing और गीत गाते हुए and worshiping. आराधना करते हुए। When you do that, जब आप ऐसे करोगे then come with the reverence to God. और परमेश्वर के पास आदर में पूर्वक आना है। Don't give reverence to us. हम मनुष्य को अब आदर मत दो, We are people, हम लोग हैं, but God is God. परमेश्वर है। Come with the gratitude heart, एक आभारी हृदय के साथ आ जाए, with receiving heart, एक स्वीकारने वाले हृदय के साथ आ with जाए eager filled heart, और एक इच्छा करते हुए मुझे आज कुछ प्राप्त करना है करना and make a decision. और एक निर्णय लेना। Now, अभी myself and my family so will serve the Lord. मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे And lifelong, जीवन भर। till my last breath, मेरा जीवन का आखिरी क्षण तक I will run for Jesus. मैं यीशु के लिए दौड़ूंगा, I will live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीऊंगा। That attitude, वो विचार, you just come here. आप उस विचार के साथ यहाँ आएंगे। Thank you, Jesus. Speak in tongues. Speak. अन्य भाषा में बातें करते Don't हैं। see here and there. यहाँ मानने देखिए, आंखों को बंद कीजिए, अन्य भाषा में बातें कीजिए Thank you. Come as a family. और एक एक परिवार आगे आ जाइए। Your wife, your husband, your children. आप पति पत्नी और आपके बच्चे के साथ आप आगे आ जाइए। You came alone. आप अकेले आए हैं You come alone. तो आप अकेले आ सकते हैं, But you come with the family. आप परिवार के साथ आए हैं। The family, as a family will come. Thank you, Jesus. Ora bashikala mahasakata. Ori bahas. Speak in tongues. Speak in अन्य भाषा में बाकी लोग आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप परमेश्वर से इच्छा कीजिए, आपको क्या चाहिए, उस बात का लालसा आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इस परिवार को समर्पित करते हैं। We anoint this family. Anoint them with holy oil. आपका परिवार जो है परमेश्वर की ओर से समर्पित किया। आपके बच्चे भी परमेश्वर की They ओर are से new समर्पित covenant children. और वो नए करार के बच्चे हैं। Right now, अभी the Lord is telling परमेश्वर कह रहा है, you, you are my soul. आप मेरे आत्मा के तलवार हैं। उसका अर्थ है You are getting fresh in your life through me. आपको मेरे You are getting the word of Jesus. आप वचन को प्राप्त करोगे और आप लोगों के वचन Your family is a watchman of God. आपका परिवार एक परमेश्वर के लिए वॉचमैन है। Watchman means वॉचमैन का अर्थ है protecting the families, और परिवार को सुरक्षित करना, protecting the churches and the city. कलीसियाओं को, शहरों को सुरक्षित That is the Old Testament prophetic ministry. और वो पुराने करार का सिखाई है। That ministry has given us to you. और परमेश्वर ने वो सिखाई को हमें निगरानी का दिया। Philippians chapter 3 verse 17 says, इसलिए तेरे से आ जाएगा 17 वचन you कहता है, are my watchman. तुम मेरे वॉचमैन हो, You must listen from me. तुम मुझसे ही सुनना चाहिए Get word from me. और मुझसे वचन को प्राप्त करना
presence of Almighty God. हम सर्वशक्तिमान देव We dedicate this present Father, Son, and Holy आप इस Spirit. परिवार को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से We समर्पित करते हैं। release your anointing and your Holy Spirit. हम आपके अभिषेक को और पवित्र आत्मा को आज लाभ करते हैं। Whatever you heard, जो भी कुछ तुमने सुना, आपके हृदय में वो बातें आया that is growing day by day. और वो आपके अंदर आया। The time is coming. अभी समय आ रहा है, You train many people. आप बहुत लोगों को तैयार करोगे, But now you are training. लेकिन अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। God is preparing. परमेश्वर तैयार कर रहा है। God is preparing you as a warrior horse. परमेश्वर आपको एक युद्ध का घोड़ा का जैसा तैयार कर रहा है। Means, उसका अर्थ है as आप एक परिवार होकर God has called you to destroy the enemy camp. परमेश्वर ने आपको युद्ध किया है दुश्मन के ज्ञान को नाश करने के You लिए। are like a sword of God. आप परमेश्वर की तलवार हो The Gideon sword is Jehovah's sword. और विक्रम का तलवार यहोवा का तलवार है। Now that sword is coming upon you. और अभी ये तलवार आपके ऊपर आ रहा है। Then you stop. जहाँ पर आप रुक जाते हैं Then you start building. वहाँ पर से एक नई शुरुआत होगा। Then you struggle. जहाँ पर आप कष्ट डालेंगे Then God is making you to rejoice. वहाँ पर परमेश्वर आपको आनंद होने के लिए लगाता है। Now receive the anointing of the Holy अब Spirit. इस समय में Receive परमेश्वर the का Holy अभिषेक को स्वीकारें, Receive the Holy पवित्र आत्मा को In स्वीकारें। Jesus' name. यीशु के महान नाम में। All territorial spirit, सारे इलाके the को power of the territorial spirit, सारे इलाके को उड़ाओ। we break your power. आप तेरे सामर्थ को तोड़ते We हैं। release this whole family from the territorial spirit. आप इस पूरे परिवार को उस इलाके के दुरात्मा से छुड़ाते हैं। We declare a decree. हम ऐलान करते हैं, घोषणा करते This family is the family of David. हैं, ये परिवार दाऊद का परिवार है। They carry the spirit of grace and spirit of supplication upon them. ये परिवार अनुग्रह और परमेश्वर का विनती को लेकर चलने वाला परिवार The है। spirit of grace and spirit of supplication. और ये अनुग्रह का और विनती का परिवार आत्मा Right now, Lord, अभी इसी समय परमेश्वर they will walk in the spirit of grace and spirit of supplication. और वो अनुग्रह की आत्मा में और विनती की आत्मा में चले। Demon doesn't have any authority. ये दुरात्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है इन पर। Right now, इसी समय we are destined to snatch you, this family, to the kingdom of God. हम इस परिवार को शैतान हमसे छुड़ाते तुझसे परमेश्वर के राज्य में। Already this family is under the blood of Jesus Christ. और पहले से ये परिवार यीशु के नाम से नीचे है। Every kind of addiction, हर प्रकार का बंधन, every kind of financial crisis and curse, हर एक आर्थिक समस्या और श्राप, we break those things in Jesus. हम उन बातों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। Right now, इसी समय you are set free right now. तुम्हें छुड़ाते हैं यीशु के नाम में। You are set free right now. यीशु के नाम में तुझे छुड़ाते हैं। The Bible says, बाइबल कहती है, God is telling to you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, when Noah and his family in the ark, जब नूह और उसके परिवार जब परमेश्वर के वो नाव में थे, in the chapter of Genesis at 15 and 16, 17, उत्पत्ति के 8वां अध्याय का 15वां पृষ্ঠা में the Bible says, बाइबल कहती है, come out from the ark. उस परमेश्वर के उस नाव से बाहर आओ। God told them, परमेश्वर ने उसे कहा, release you and your family from limitation. अब आपको और आपके परिवार को सीमित करने से बाहर आ जाओ। You go and release
बार शुद्ध पाएगा, आपके पैसे भी छुटकारा हो जाएगा। Free from all debt on you. आपके सारे कर्जे से आप आजाद हो जाएंगे। You will multiply. आप दुगना होंगे। In Jesus' name. यीशु के महानाम में। Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा। Lord, we dedicate this family. पिता हम इस परिवार को समर्पित करते हैं। We are handling this family in your precious hands. परमेश्वर इस परिवार को अपने मूल्यवान हाथों में समर्पित करते हैं। What I see, मैं क्या देख रहा हूँ? mighty hands. परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आप पर आ रहा है। When the hand of the Lord came upon Nehemiah, जब पर सामर्थ्य परमेश्वर का हाथ नेहमा पर पराया, God everything is totally useless. उसके सारे नुकसान पूरा होते हुए दिखा। When the hand of the Lord came upon Elisha, जब परमेश्वर का सामर्थ्य एलीशा पर पराया, वो अपने कमर को बांध लिया and before the chariots of Ahab had reached Israel. और अहाब राजा के रथों से भी बहुत आगे दौड़कर इस्राएल पहुंचा। What I'm saying, मैं क्या देख रहा हूँ? supernatural provision is released. अलौकिक जरूरतें आपका पूरा किया जा रहा है। Supernatural anointing and the strength is released. अलौकिक अभिषेक और बल आपको रिलीज किया जा रहा है। Today you're working in your strength. अभी तक आप आपके खुद के बल पर चल But रहे थे, you're not, now onwards you're working in the strength of God. लेकिन अभी से आप परमेश्वर के In बल the से anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा In the चलते spirit of excellence. और उत्तम आत्मा के Where संचरण you fail, जहाँ पर तुम हार गए, where God wants to honor you double. उस जगह में परमेश्वर तुम्हें दुगना आनंद देना चाहता है। That is your tears. वो तुम्हारा आंसू है। Your tears will be honored by the Lord. परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को आनंद देगा। Reward by the Lord. परमेश्वर से प्रतिफल को Just पाओगे। receive, brother and वो sister. अभिषेक को स्वीकार In Jesus' mighty name. यीशु के महानाम में। आप बाकी लोग आगे बादशाह में बातें करते जाइए। You are not spectator here. आप यहाँ पर देखने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते जाइए। You are partakers. आप एक बागी हो, हिस्सा ले रहे हो। You are a soldier of Christ. आप मसीह के एक सैनिक हो। You are a servants of God. आप परमेश्वर के एक दास हो। Daughter and sons of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। Now don't see anything. यहाँ पर किसी और बात को न Don't be देखें। as a spectator. यहाँ पर देखने वाले मत बनो। When we are praying for the family, जब आप परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, pray for this family. आप भी इस परिवार के लिए प्रार्थना करना। We all together we are praying. हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। One family stand before the Lord. एक परिवार जब परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, That family revival will come. उस परिवार के द्वारा संजीवन आता है। Family, the revival will flood उस in the परिवार के द्वारा शहर में संजीवन बहता है। Pray for the family. आप सभी लोग मिलकर परिवार के लिए प्रार्थना करना। You know their family, you know their name. आप उनके नाम को जानते हैं Without knowing name also, ना, अगर आप लोग नाम नहीं जानते हैं, release the blessings upon their life. आप जो आगे खड़े हैं उनके लिए अपने आशीषों को आजाद करना। When you are blessing, जब आप लोग आगे खड़े व्यक्ति के लिए आशीष करोगे, family will be broken. वो परिवार का श्राप टूट जाएगा। Thank you, Lord. Father, Son, and the Holy Spirit, we dedicate this family पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम इस परिवार को समर्पित करते हैं for your kingdom. आपके राज्य के लिए। Still today, आज तक you are receiving prophecies after prophecies. आप भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी प्राप्त करते आए, But now, God, लेकिन अभी से you are
वो भविष्यवाणी को पूरा होने में तुम प्रवेश करो। परमेश्वर क्या कह रहा है? यिर्मयाह का पहला अध्याय का 12 वचन, एजेकियल 12 का 25 और 28। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस वचनों को पूरा करने के लिए शामिल हूँ। वहाँ पर कोई देरी नहीं है, वहाँ पर कोई भी बातें रुकावट नहीं है। आज कोई देरी नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। मैं क्या देख रहा हूँ? भाई आप खड़े हैं परमेश्वर की महिमा के साथ। आप लोगों को चुनौती दे रहे हो। लोग प्रभु में आएंगे, भीड़ आ रहा है। उस तरह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके पिछले बातों में फंसे न रहना। परमेश्वर को प्रश्न मत पूछना, केवल नम्रता से चलना। अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक और वो अभिषेक आ रहा है। Take it. शिकारी है। The Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर The रहा है। Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Just receive, sister. स्वीकारिए बहन। Today onwards, आज से your thinking will change. आपका Your सोच prayer बदल life will जाएगा, change. आपका प्रार्थना Your जीवन बदल ministry will जाएगा, change. आपका सेवकाई Your बदल life will जाएगा, change. आपका जीवन बदल जाएगा। The life of Christ will come to you. मसीह का जीवन आपके पास आएगा। You will show the Christ to many. आप बहुतों को मसीह का परिचय कराओगे यीशु के नाम में। Lord, we dedicate this family, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस परिवार Till को हम all समर्पित the करते family members in the house. हैं। ये पूरा परिवार जो घर में है, We dedicate whole family हम इस पूरे परिवार को for समर्पित करते हैं extension of your kingdom. आपके राज्य की For बढ़ोतरी के लिए exalting the name. और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। शवाला खल्ला ठाठरवाला खो। What I'm seeing, मैं क्या देख रहा हूँ? what I'm seeing, मैं क्या देख रहा हूँ? your heart, your hand, आपका हाथ filled of glory. महिमा से भरा हुआ है। When you stretch forth your hand, जब तुम तुम्हारे हाथों को आगे बढ़ाते हो, presence of God will touch the people. परमेश्वर को उपस्थिति लोगों को स्पर्श करेगा, लोगों को चंगाई देगा, छुटकारा देगा। Thank you. धन्यवाद यीशु। Oh, but लेकिन don't take any harsh decision in your settlement. आपके जीवन में कोई भी कठोर ऐसा निर्णय मत लेना। Devil is waiting for और शैतान रुका हुआ है, waiting to take you to the wrong track. एक गलत दिशा में ले जाने के लिए। But the Lord is telling लेकिन परमेश्वर कह रहा है, when you settle at my feet, जब तुम मेरे पैरों चरणों के पास सेटल हो जाओगे, I will settle you according to my perfect will. मैं तुम्हारा जीवन में तुम्हारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हारा जीवन को सेटल That is करूंगा। the time और वो समय है, you will work for me, run for me तुम मेरे लिए सेवा करोगे, तुम मेरे लिए दौड़ोगे, as a family. एक परिवार बनकर। Thank you for what I'm seeing, brother. और मैं क्या देख रहा हूँ भाई? Your heart is filled with the Holy Spirit. आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। You are caliber to receive a blessing. आप क्या ले गए? 20% Different spirit. और कैलिब के पास भिन्न प्रकार का आत्मा था। He followed God wholeheartedly. वो परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय से चला। You will follow God wholeheartedly. आप परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय से चलोगे। Stands till the end. कैलिब आखिरी तक परमेश्वर में बना रहा He has no self. और उसमें स्वार्थ नहीं था। He is fighting. He war
for all the children of God. Saying, वो युद्ध करता था, परमेश्वर के बच्चों के लिए लड़ता था। what I'm saying, मैं क्या देख रहा हूँ? you are carrying that spirit. आप उस आत्मा को लेकर चलते हो, Work for the people. परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करो, परमेश्वर की सेवा करो Bring deliverance for the people. और लोगों के लिए छुटकारा What करो। God has reserved for those things, God's position, you are bringing and giving to them. और परमेश्वर का स्तर और वो जगह में उनको लेकर आकर रख रहे हैं, Jesus, my Jesus. यीशु के महान नाम में। Lord, bless this family, Lord. परमेश्वर इस परिवार को तो Lord, bless आशीष this कर, family. परमेश्वर तो इस परिवार को Bless आशीष this कर, family. परमेश्वर इस परिवार को तो आशीष Makira कर। Hasakoloro. तो बोला बाल ले ले ले। When you are, where you are stuck, जहाँ पर तुम अटके हो from where God is opening hope of door. और वहाँ से परमेश्वर आशा का द्वार को खोल रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Kimala Tisho Kulbada. God will not cut off your hope. परमेश्वर आपकी आशा को काटेंगे नहीं, God will fulfill your hope. परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेंगे। Every financial commitment will be provided by supernatural God's सारे things. पैसे के जरूरत परमेश्वर अलौकिक विधि से आपको दिया जाएगा, In Jesus' name. यीशु के महान नाम में।